Hello students, this is part 3rd of motion in which we are going to learn about the three types of equations of motions which are derived by the graphical method. Here in this graph you can see that this is the graph between speed, time, or we can say that velocity and time. Velocity per unit time is equals to acceleration, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. सो द स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दिस इज अ ग्राफ फॉर अ बॉडी व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म वर्ड क्यों कहा? क्योंकि यहाँ आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको ग्राफ का ये स्लोप, और दिस स्ट्रेट लाइन shows that the uniform motion, the uniform acceleration of a body. Here in this graph, when a body is placed at point O, its initial velocity is u, which is denoted by u, and when it reaches at point C at time t, then the final velocity of the body at point B is v, which is denoted by v. Initial velocity is always denoted by small u and final velocity is always denoted by v. And acceleration is denoted by a, and t is the time period. So from this graph we are going to derive three equation of motion. First one is v is equals to u plus at. Second equation of motion is s is equals to ut plus half at square. Third equation of motion is v square minus u square is equals to 2as. Here in first equation of motion, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration of the body, and t is the time period. In second equation of motion, s is the displacement covered by an object or covered by an body, u is again initial velocity, time period, a is acceleration, and t square is again time period. In third equation of motion, v square, v is final velocity, initial velocity, acceleration, and displacement. So you can see that how we derive three equation of motion with the help of this diagram. So for first equation of motion के लिए हम derivation करेंगे, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया as per definition, acceleration of a body, acceleration क्या होता है? Acceleration of a body is the rate of change of velocity per unit time. This is the definition of acceleration. To know that the graph between velocity and time gives us acceleration, and this straight line gives the slope of the acceleration. So we can also say that the slope of vt time, vt, here v is velocity, t is time. So slope of the velocity time graph gives us acceleration. Acceleration की जगह अगर मैं ये लिख देती हूँ कि slope of velocity time graph, again it means that कि वैसे तो हमारे पास acceleration होता है change in velocity per unit time, लेकिन अगर आपके पास uniform acceleration के लिए जो ग्राफ बना है, जो velocity और time period के बीच में मिला है आपको, वो slope आपको acceleration ही देगा. So students, in this graph you see that AB is the slope, एंड स्लोप को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, जो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया जाता है, कि हम मान लेते हैं इस ए पॉइंट के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ, x1 उसको y1 मान लेते हैं, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट पे जो x के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 और y2 से y कोऑर्डिनेट्स को मैंने डिनोट कर दिया. तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो स्लोप फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और अगर आपको इस तरीके से ट्राइंगल बन रही है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो टेंजेंट थीटा होता है ये हमेशा स्लोप देता है, दैट इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में ए डी. बिकॉज यू नो दैट जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. हमेशा याद रखना जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए जो इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन होगी, वो ये होगी. हेयर y इज द y एक्सिस, x इज x एक्सिस, m यहाँ पे डिनोट करता है स्लोप को,
m होता है यहाँ पे स्लोप और c को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे ग्राफ ने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट किया है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करती स्ट्रेट लाइन तो मेरा इंटरसेप्ट ये हो जाता, लेकिन मेरा ग्राफ स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। सो हमें अगर हम m यहाँ पे जो स्लोप है अगर हमें m निकालना है तो वो टेंजेंट थीटा से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ट्राइंगल बन रही है स्लोप ट्राइंगल पे, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सिमिलरली टेंजेंट थीटा जो होगा वो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो हेयर इन दिस डायग्राम परपेंडिकुलर इज BD and base is AD. So this is the slope of this diagram. Now as per definition हमने अभी क्या कहा था कि एक्सेलरेशन हमें जब मिलेगी जो VT टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। सो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ VT टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसको हमने m से डिनोट किया है और फाइंड आउट किया है हमने अपॉन उसको BD अपॉन में AD। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ slope of line AB which is equals to BD upon में AD and which is equals to BC minus DC upon में AD। BD जो हमारे पास लाइन है वो इतना पार्ट है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकती हूँ कि BC माइनस में AD। इसको इस तरीके से लिखने का तरीका ये है जैसे कि आप डायरेक्टली रिजल्ट जानते हो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी u जो कि पॉइंट A पे है, इतने डिस्टेंस पे हम मान सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी कब आई है जब हमारा ऑब्जेक्ट B पॉइंट पे पहुंच गया है। तो इस तरीके से लिखने का मतलब है ताकि हम इस इक्वेशन को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकें। तो हेयर BC को मैं लिख सकती हूँ V माइनस DC को लिख सकती हूँ मैं U, क्योंकि ये जो DC है वही OA है अपॉन में AD। जो AD जो हमारा x एक्सिस में है जो टाइम पीरियड को डिनोट करता है, तो AD और हमारे पास OC दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे मैं T लिख सकती हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T। जब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V माइनस U इज इक्वल्स टू 80। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल था डिराइव करना। नाउ वी विल डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसके कंप्लीट एरिया को फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा कि कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके लिए हम ये डायग्राम को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल, तो कितना डिस्टेंस अंदर ट्रैवल हुआ है उस ओवरऑल को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ये लिख देती हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADC, जिससे कि अगर दोनों के एरिया को मैं कंबाइन कर दूंगी तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। हमें डिस्टेंस इसलिए निकालना है क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस को S से डिनोट किया गया है। सो वी कैन राइट इट एज S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। एज यू नो दैट ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाफ इंटू बेस। यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बेस है AD और हाइट क्या है BD। इसके अंदर एज इट इज़ वैल्यू को पुट कर दें AD मल्टीप्लाई बाय BD प्लस लेंथ और ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल के अंदर लेंथ हमारे पास ये हो गई OC और ब्रेड्थ क्या हो गई DC। सो OC मल्टीप्लाई बाय DC। अब इन सब की वैल्यूज़ को हमें पुट करना है।
AD की क्या वैल्यू होगी, BD की क्या होगी, OC और DC की वैल्यू क्या होगी। सो अगेन स्टडी दिस ग्राफ। AD की वैल्यू यहाँ पे T के बराबर है, OC की भी वैल्यू यहाँ पे T के बराबर है, OA की वैल्यू या मैं कह सकती हूँ DC की वैल्यू हमारे पास DC की वैल्यू U के बराबर है, और BD की वैल्यू हमारे पास BD की वैल्यू है V माइनस U। तो इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगी, दैट इज़ हाफ इंटू AD जो कि हमारे पास TI इंटू BD जिसकी वैल्यू है V माइनस U प्लस OC इज इक्वल्स टू T एंड DC विच इज इक्वल्स टू U। तो S इज इक्वल्स टू UT, इसको मैंने पहले लिख लिया, प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। ये हमारे पास अभी तक इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चाहिए, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखें V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT आया था, या मैं लिख सकती हूँ V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो क्या मैं इस V माइनस यू की जगह AT लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A और T और ये की AT हो गया, दोनों मिलके T स्क्वायर, AT स्क्वायर। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन which is also easily proved by this graphical method. Now we have third equation of motion, that is V square minus U square is equals to 2AS. This is third equation of motion. Again you see that third equation of motion में भी हमें distance चाहिए, initial और final velocity भी चाहिए। तो अगर इस केस में हम total distance traveled by an object को डायरेक्टली ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से निकाल दें, क्योंकि अगर इस पूरे डायग्राम को मैं देखूं तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ लिख सकती हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज डिनोटेड बाय एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर distance between the two parallel sides। मीन्स ये आपके पास जो ट्रेपीजियम है, अगर इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, इसका डायग्राम इस तरीके से, जब मैंने ये जो BD पोर्शन है, ये जो BC पोर्शन है, वो मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रख दिया, बाकी ये जो OA पोर्शन था उसको इस तरीके से रख दिया। तो अगर इस ट्रेपीजियम में मैं देखना चाहूँ, ये ट्राइंगल हो गई हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, एंड जैसे कि फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हमारे पास ये हो गई OA और BC। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज OB। अगेन वही OA, BC और OB की वैल्यूज़ को मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, OA की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ इक्वल्स टू U। हमें अब चाहिए BC एंड OB की वैल्यू। दिस इज BC एंड दिस इज, सॉरी, हेयर इन दिस डायग्राम दिस इज B एंड दिस इज C। तो फॉर्मूले में भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जैसे OA एंड BC अगेन इनटू में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OC। सो हमने OA की वैल्यू अभी फाइंड आउट की विच इज़ इक्वल्स टू U। BC की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे विच इज़ इक्वल्स टू V, एंड OC इज इक्वल्स टू, दिस इज OC विच इज़ इक्वल्स टू T। ऑल द वैल्यूज इज पुट इन दिस इक्वेशन, देन वी हैव हाफ इंटू OA जिसकी वैल्यू आई हमारे पास U, एंड BC की वैल्यू है V इंटू OC की वैल्यू है हमारे पास T। सो दिस इज इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, S इज इक्वल्स टू हाफ V प्लस U इंटू में T। नाउ यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हम यहाँ से टाइम की फॉर्म में इस इक्वेशन को अगर लिखूँ तो V माइनस यू अपॉन में A हो गया। अब इस टाइम की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देती हूँ तो S इज इक्वल्स टू हाफ V प्लस U, V माइनस U अपॉन में A।
देन यू नो दैट आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वही आइडेंटिटी इस पे लग जाएगी v प्लस यू एंड v माइनस यू पे. देन दिस इक्वेशन बिकम्स s इज इक्वल्स टू हाफ 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. जब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव v square minus u square which is equals to 2as, and you know that this is third equation of motion which is also proved by this graphical method. So these are the three equation of motion. By using them we can easily calculate any of the quantity which is not known in the numerical, or we will easily solve the numerical portion by using these three equations of motion. Now the last part of the chapter is uniform circular motion. As you all know that uniform ये word बार बार हमारे पास इस चैप्टर में आ चुका है. जैसे कि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन किया है. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, देन द मोशन एग्जिबिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर हम कह सकते हैं ओनली सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म वर्ड वहाँ लगेगा जहाँ कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस के अंदर इक्वल टाइम पीरियड को, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम पीरियड के अंदर मोशन को एग्जिबिट करता है. एंड वी कैन से दैट द मोशन एग्जिबिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम पीरियड में, उस केस में हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. अगर फोर्स की बात करें, जैसे एक जनरल एग्जांपल लेके चलो, एक पर्सन है, उसने एक थ्रेड लिया, उससे एक पेबल को टाई किया और उसको सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो अपने हाथ से उस थ्रेड को छोड़ देता है तो यू नो दैट वो जो थ्रेड है वो इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, मतलब टेंजेंट फॉलो करेगा, टेंजेंट बना लेगा. तो जब भी ऑब्जेक्ट हम सर्कुलर मोशन के अंदर घुमा रहे हैं, अगर फोर्स इनवर्ड लग रहा है, अगर ओरिजिन के टूवर्ड्स फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.